Good morning, students. Again, welcome back in my YouTube channel, RSHOD Chemistry. Good morning, students. This is the class 12th. We are discussing the preparation process of aldehydes and ketone and some special process by which we can prepare the aldehydes. Dear students, today we discuss about the chemical properties of aldehydes and ketones. So, before discussing the aldehydes and ketone, स्टूडेंट्स आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है। दोनों की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का ये साल बहुत ही मंगलमय हो, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो और आप लोगों का ये साल उमंग से भरा हो और आप लोग नेक्स्ट ईयर में उमंग के साथ, न्यू रिजल्ट के साथ, न्यू अच्छे मार्क्स के साथ पास हो। दिस इज माय बेस्ट विशेस। सो ऑल ऑफ यू कम बैक इन टॉपिक। द टॉपिक दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। You know that aldehydes and ketone both contain the carbonyl group. Carbonyl means you know that like this. This is the carbonyl group. Here the double bond and here also double bond. It means in aldehydes and ketones, yani carbonyl group, carbon is sp2 hybridized. Here the double bond, it means here the pi bond. Double bond means 1 sigma and 1 pi. So it is the sp2 hybridized. In the aldehydes and ketone there are the carbonyl group. Carbonyl means double bond C, double bond O. So this carbon is sp2 hybridized, and you know that students, those compound which had double bonded generally gives the addition reactions. जिसमें डबल बॉन्ड होता है जनरली क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं. एडिशन मीन्स the reactant, all the reactants and combined each other and gives the product. This is the addition reaction. So there are different reactions given by the aldehydes and ketones. So reactions of aldehydes and ketones are, what are these? Nucleophilic addition reactions followed by elimination of water. यानी aldehydes और ketone जो पहला रिएक्शन देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं. क्या एलिमिनेट करके? वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करके. एलिमिनेट मतलब निकालना. यानी जब दोनों कंपाउंड या जितने भी आपके रिएक्टेंट्स अगर कंबाइन करेंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एक प्रोडक्ट का फॉर्म होगा. ठीक. द सेकेंड रिएक्शन गिवन बाय द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. These are given the addition reactions because they contain the double bond. And the third reaction, that is oxidation reaction. Fourth is reduction reactions. And fifth is miscellaneous reactions. So there are the 5 type of reactions given by the aldehydes and ketone, means the compound which contain the carbonyl group. So students, there are the 4 reaction. That one is the nucleophilic addition reactions followed by elimination of water molecule, and second is nucleophilic addition reactions, and third is oxidation reactions, and fourth is reduction reactions, and fifth is miscellaneous reactions. Okay, अब one by one I discuss in detail. अब एक एक के बारे में हम डिटेल आपको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस followed by nucleophilic by elimination of water. So the first, that is nucleophilic addition reactions followed by elimination of water molecule. पहला हम डिस्कस करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स. इसमें जितने रिएक्शंस होंगे दोनों रिएक्टेंट आपको कंबाइन करने हैं और केवल वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं. और ये सारे, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं. आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, बट स्टूडेंट्स आपको केयर क्या करना है, केवल और केवल केयर करना फॉर्मूला का. अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आप इजिली रिएक्शंस को राइट कर पाओगे. तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स.
इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी इसमें जो है अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप जानते होंगे अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया दैट इज NH3। तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल करके कोई कंपाउंड ऐड किया जाएगा तो इसको कहेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो जनरली पहले हम कॉमन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट ये कार्बोनिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस NH2Z। NH2 मीन्स अमोनिया का पार्ट और Z मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने कोई कंपाउंड ऐड किया, Z मीन्स कंपाउंड कोई, तो ये कहलाएगा अमोनिया डेरिवेटिव्स। वीकली एसिडिक मीडियम में अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल चूंकि आपने लिखा है ना फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इसमें से ये वाटर एलिमिनेट कर गया और जो प्रोडक्ट बचेगा वो आपका ऐड हो जाएगा। तो दिस इज अ कॉमन रिएक्शन। बट इसमें अब फर्स्ट रिएक्शन हम आपको एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में फर्स्ट रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिएक्शन विद देखिए हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन हमने बताया कि आपको फॉर्मूला माइंड रखना होगा, द फॉर्मूला दैट इज NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमाइन जो है ये फॉर्म क्या करेगा, ऑक्सिम्स, OXIMES। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH टू फॉर्म ऑक्सिम्स, OXIMES, ऑक्सिम्स। कई साल आपके एग्जाम स्टूडेंट्स पूछा गया व्हाट आर द ऑक्सिम्स, तो आप लिखेंगे कि व्हेन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट्स विद द hydroxyl amine then gives a product, this product is known as the oximes। अब आइए जैसे सपोज दैट हम एस्टोल्डिहाइड लें, एस्टोल्डिहाइड मींस CH3CHO, तो देखिए स्टूडेंट्स ये CH3CHO डबल बॉन्ड O ये ना प्लस H2N, इसको हम देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन का NH2OH है, हम रिएक्शन में H2 को पहले राइट करेंगे, H2NOH लिख दिया। वीकली एसिडिक मीडियम अगर करेंगे देखिए ये स्टूडेंट से वाटर मॉलिक्यूल बन गया, वाटर निकल गया, बचा यहाँ क्या NOH और इस डबल बॉन्ड के साथ NOH हो गया। अब ये कंपाउंड स्टूडेंट्स कौन सा था, ये कंपाउंड आपका था एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये एसिटल्डिहाइड जो फॉर्म करेगा, हमने कहा क्या फॉर्म करता ऑक्सिम्स, तो नेम क्या हो जाएगा एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम, एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम, एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम, ठीक। या इसका अगर आईयूपीएसी लिख लिए तो इसका नेम आईयूपीएसी क्या होगा स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नेम इसका होगा इथेनल, इथेनल CHO है होगा इथेनल, तो इसका क्या हो जाएगा इथेनल ऑक्सिम। ओके, अब आप यहाँ पर कोई भी कंपाउंड दिया हो, सपोज दैट हम एसिटल्डिहाइड लिया, आप कीटोन भी ले सकते हो। अगर आप कीटोन्स लेंगे तो कीटोन्स का आप ऑक्सिम बनेगा, जैसे आप कीटोन होगा तो जैसे एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम से स्टूडेंट बना था वैसे आपका कीटोन ऑक्सिम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम उसका भी एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सपोज दैट हम मे बी आप यू अंडरस्टैंड दैट, अब इसका हम सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगेन यू अंडरस्टैंड। सपोज दैट हम एसिटल्डिहाइड की जगह पे अगर हम कोई कीटोन लें, सपोज दैट हमने एसीटोन ले लिया स्टूडेंट्स, एसीटोन मतलब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसीटोन है। अगर हम इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएं तो इसको आप ऐसे लिख दोगे H लाइक दिस। वीकली एसिडिक मीडियम स्टूडेंट्स कराएंगे तो सेम प्रोसेस, देखिए हमने बताया कि अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर देगा स्टूडेंट्स, मींस क्या बन गया वाटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका हुआ CH3 एंड अगेन हियर द C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या गया स्टूडेंट्स NOH, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका नेम अगर आप जानते होंगे तो आपका 1 2 3 अगर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो दैट इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन CO के लिए ओन लगता है प्रोपेनोन, या अगर आप कॉमन लिखेंगे तो एसीटोन होगा, अगर कॉमन नेम इसका लिखते हैं तो दैट इज एसीटोन, एसीटोन। अब इसका अगर आप करेंगे तो क्या होगा एसीटोन ऑक्सिम, एसीटोन ऑक्सिम ये हो गया, और अगर ये लिखेंगे तो आपका हो जाएगा प्रोपेनोन ऑक्सिम। ओके, तो सच वे अगर आपका कोई भी यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड है, आप हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा ऑक्सिम बनेगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक। अब इसका हम सेकंड रिएक्शन स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। पहला आपने लिखा था कि एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स में फर्स्ट आपने लिखा था रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब हम इसका हम सेकंड रिएक्शन से स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं।
मीन्स तो फर्स्ट आपका था अमोनिया डेरिवेटिव्स में। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स का हम सेकंड रिएक्शंस इसका अमोनिया डेरिवेटिव्स का सेकंड करेंगे, दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्राजाइन। द सेकंड दैट इज रिएक्शन विद हाइड्राजाइन। स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए, अगर कोई भी कंपाउंड जाइन है तो वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट होगा, जोन में। अब हाइड्राजाइन का हमने बताया फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, H2NH2NH2, ये हाइड्राजाइन है। हमने बताया कभी भी अगर जाइन है तो किस में कन्वर्ट होगा, जोन में। यानी ये आपका हो जाएगा टू फॉर्म हाइड्राजोन, टू फॉर्म हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। जो हाइड्राजाइन था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्राजोन में। अब कोई भी कंपाउंड लीजिए जिसमें आपका कार्बोनिल है, सपोज दैट हमने कंपाउंड लिया HCH3C डबल बॉन्ड O, ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, एसिटोल्डिहाइड, एसिटोल्डिहाइड। इसका आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए। अब हमने इसको बताया आप H को पहले कर लो रिएक्शन के इम्प्रूव करके, ऐसे आप लिख सकते हैं NNNS2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सॉरी सिंगल बॉन्ड हियर, ओके। इन द वीकली एसिड मीडियम देन क्या होगा, ये आपका इससे रिएक्ट करके क्या बना स्टूडेंट्स, वाटर बना लिया। यानी प्लस क्या बन गया स्टूडेंट्स, वाटर। अब क्या बचा यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, बता H, यहाँ बचा CH3 एंड C डबल बॉन्ड। अब ये स्टूडेंट्स जब O यहाँ से हटेगा तो ये ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा स्टूडेंट्स, NNS2। अब स्टूडेंट्स इसका नेम क्या हो जाएगा, हमने बताया हाइड्राजोन बनता है। ये कंपाउंड क्या था, एसिटल्डिहाइड, तो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। द कंपाउंड दैट इज एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ऑलवेज जो जाइन होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जोन में। अब अगर हम यहाँ कीटोन लेने, सपोज दैट मान ली हमने ले लिया दूसरा एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, आप जानते होंगे दिस इज एसीटोन, ठीक। अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजाइन से कराएं सेम पैटर्न में एन, स्टूडेंट्स अगर कोई भी कंपाउंड अगर आपका आएगा, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, रिएक्शन गोज इन सेम प्रोसेस, सेम व्हाट इज दिस, ये से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर, और से इसमें ऐड हो गया तो स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड स्टूडेंट से ऐड हो जाएगा, मींस C, लेकिन C डबल बॉन्ड NNH2। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेम, दिस इज एसीटोन, तो ये क्या हो जाएगा, एसीटोन हाइड्राजोन, दिस इज एसीटोन हाइड्राजोन, ओके। So this is the second example of ammonia derivatives, means reaction with the hydrazine, okay। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद 1 मिनट। स्टूडेंट्स द थर्ड we discuss that reaction with phenyl hydrazine, the third that is reaction with phenyl hydrazine, अब स्टूडेंट्स फिनाइल हाइड्रोजाइन है, ध्यान दीजिए। एक्चुअली फिनाइल हाइड्रोजाइन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये फिनाइल हाइड्रोजाइन है। ये क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म, अभी हमने बताया था कि जो हाइड्रोजाइन होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, हाइड्राजोन में। तो फॉर्म क्या करेगा, टू फॉर्म फिनाइल हाइड्राजोन, यानी जो हाइड्राजाइन होगा स्टूडेंट से किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्राजोन में, ओके। अब स्टूडेंट्स हम अगेन इसका अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो सेम प्रोसेस, अगर हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, सपोज दैट हमने पहले एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये स्टूडेंट्स दैट इज एसिटोल्डिहाइड। अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजाइन फिनाइल से कराएंगे, इस रिएक्शन को देखिए हम रिएक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए उल्टा लिख लेंगे। उल्टा कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये हमने H2 कर लिया, NNHC6H5 स्टूडेंट्स ऐसे हमने राइट कर लिया। वीकली एसिडिक मीडियम स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, यहाँ से क्या रिएक्शन कर जाएगा, वाटर, और ये ऐड हो गया। तो ऐड क्या होगा स्टूडेंट्स, HCH3, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन निकलेगा तो ये पूरा ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, NNHC6H5। अब स्टूडेंट्स इसका नेम क्या हो जाएगा, हमने बताया कि ये हाइड्राजोन में कन्वर्ट होगा। तो
तो एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, द नेम ऑफ कंपाउंड दैट इज एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर सेम प्रोसेस हम कीटोन का कराएं, जैसे हमने यहाँ एल्डिहाइड का कराया, अगर हम सेम प्रोसेस ऐसे कीटोन का कराएंगे स्टूडेंट्स, तब भी यही प्रोसेस होगी। अगर सेम प्रोसेस हम देखिए आपका कीटोन का लेते हैं, सपोज दैट हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, सेम रिएक्शन इसका हमने करा लिया H2NH C6H5 एसिडिक मीडियम। स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम देखिए आपका क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब जो कंपाउंड बचा यानी सेम ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या ऐड हो जाएगा, NNH C6H5, तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, इसका नाम है एसीटोन। तो यहाँ एसिटल्डिहाइड जब क्या होगा, एसीटोन फेनिल हाइड्राजाइन हो जाएगा। ठीक, मे बी ऑल ऑफ दिस। नाउ वी डिस्कस दिस इज द थर्ड रिएक्शन। नाउ वी डिस्कस द फोर्थ रिएक्शन ऑफ दिस टाइप, दैट इज रिएक्शन विद now we discuss the fourth reaction related to the ammonia derivatives. This is the fourth reaction students. This is the reaction with 2,4-dinitro। देखिए इसको हम शॉर्ट में कहते हैं स्टूडेंट्स DNP, ये DNP टेस्ट भी कहलाता है। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन फॉर्म टू क्या बनाएगा भाई, हमने बताया जाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जोन में। तो क्या बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हमेशा जाइन जो है किसमें कन्वर्ट होगा, जोन में। अब देखिए आप किसी भी एल्डिहाइड जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, अगर उसका रिएक्शन किससे कराओगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। इसको स्टूडेंट्स हम DNP टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DNP का मतलब हो गया देखिए डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। अब स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन कराएं, आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो। तो अगर स्टूडेंट्स हम एल्डिहाइड या कीटोन्स का सपोज दैट हम यूज करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इसका हम स्टूडेंट्स कोई भी हम मान लीजिए एल्डिहाइड लिया, सपोज दैट हमने यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O ले लिया। स्टूडेंट्स यू नो दैट दिस इज द एसिटल्डिहाइड। अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या होता है एथ, तो नेम क्या हो जाएगा इथेनल, CHO है तो इथेनल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका हम किससे करा रहे हैं स्टूडेंट्स, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, जरा ध्यान समझिएगा, ये आपका फिनाइल होता है। फिनाइल मींस बेंजीन रिंग। लुक हियर, यू नो दैट फिनाइल मींस स्टूडेंट्स क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। अब बेंजीन रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट में होता है, आप जानते हैं, ये बेंजीन हो गया। अब आपने लिखा 2,4-डाइनाइट्रो, यानी 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है, डाई। अगर आप किसी तरफ से चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इधर से मूव करें, क्योंकि अगर आप जानते होंगे डाइनाइट्रो आपका क्या लिखा गया, हाइड्राजाइन। अब हाइड्राजाइन में सेम आपको बताया गया NH-NH2 होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर जो रिएक्शन लगा रहे हैं, देखिए NH-NH2, ये स्टूडेंट्स हो गया NH-NH2। सेम देखिए इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, वाटर। अब आइए यहाँ पर, अब लिखा 2,4, स्टूडेंट्स 1 से अगर स्टार्ट करोगे 2 ये होगा, नाइट्रोजन NO2 एंड 4 मतलब 2, 3, 4 यहाँ हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। अब अगर इसका हम स्टूडेंट्स वीकली मीडियम में हम कराते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम वही होगा। ये वाटर निकल गया, ये ऐड हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बचा स्टूडेंट्स, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया स्टूडेंट्स NNH। इसके बाद ये आपका बेंजीन रिंग बन जाएगी स्टूडेंट्स लाइक दिस। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपका हो गया NO2 एंड 6 नंबर यहाँ पर आपका हो गया NO2। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा आपका एसिटल। ध्यान समझिएगा, अब इसमें क्या होगा, ये चीज पूरा ऐड हो जाएगा, केवल हाइड्रोजाइन की जगह पे हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो। इसका नेम क्या होगा
acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone. Okay, so these are the reactions related to the ammonia derivatives. The one is left for this. The fourth means fifth, that is I want to discuss the fifth reaction. All of you look again and try to understand. Now students, we discuss the fifth reaction for this, that is reaction with semi-carbazide. Listen, next, that is the reaction with semi-carbazide. Reaction with semi-carbazide. Dear students, reaction with semi-carbazide. What the reaction of semi-carbazide? Same process, that is reaction अगर हम लिखें ऐसे लिख सकते हैं NH2 NHCO NH2. ठीक, ये आपका सेमी कार्बाजाइड है. अभी बताया गया कि जाइड जो होगा हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? जोन में. तो ये कन्वर्ट किस में होगा? टू फॉर्म सेमी कार्बाजोन. कार्बाजोन. जाइड किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? जोन में. अब आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, सपोज दैट हम एस्टल्डिहाइड की बात करें, ये आपका है, यहां हमने ले लिया दिस. अगर इसका हम रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड्स कराते हैं तो इसको हमने हाइड्रोजन को ऐसे लिखना है और इसको एक साथ कर लो NNH. ठीक, हमने हाइड्रोजन को पहले कर लिया, NNH एक साथ हो गया स्टूडेंट्स, CONH2. वीकली मीडियम स्टूडेंट्स क्या होगा? सेम वही प्रोसेस होगा. ये इससे रिएक्ट कर लिया, क्या बन गया स्टूडेंट्स? वाटर बन गया. अब वाटर के बाद स्टूडेंट्स बचा यहाँ क्या? HCH3. यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O. अब इस O से ये निकला अगर तो ये पूरा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो हो गया NNHCONH2. अब स्टूडेंट्स ये क्या बना? जरा सोच के बताइए. अगर इसका अगर नेम लिखना हो तो ये आपका क्या है? एस्टल्डिहाइड. तो इसका नाम क्या था? सेमी कार्बाजाइड. तो क्या हो जाएगा? एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन. जो प्रोडक्ट बनेगा हो जाएगा एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन. ठीक, अगर हम इसी के प्लेस पे अगर हम ये ले लें, एसीटोन ले लें, CH3C डबल बॉन्ड O. स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस होगा. अगर इसी से रिएक्शन कराएं सेमी कार्बाजाइड से NNHCONH2 एसिडिक मीडियम में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? वाटर तो देखिए यहां से वाटर लिबरेट हो गया. अब क्या होगा? ये जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर ये पूरा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, यानी CH3 डबल बॉन्ड NNHCONH2. तो क्या बन गया? एसीटोन सेमी कार्बाजोन. मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. तो ऑल दीज रिएक्शंस आर रिलेटेड टू द अमोनिया डेरिवेटिव्स. मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ये रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए थोड़ा इसको आप क्लियर करिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे रिएक्शंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. आपको या तो रिएक्शन दिया होगा एंड आस्क टू कंप्लीट द रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कहेगा, या तो आपको व्हाट हैपेंड में जनरली रिएक्शंस आते हैं, या तो आपको पैसेज बेस्ड दिया होता है. और जो 2,4-DNP टेस्ट है ये आप स्टूडेंट्स लैब में भी आप यूज करते हो. मींस अगर आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन में डिफरेंशिएट करना होता है तो आप 2,4-DNP टेस्ट करोगे लैब में. ठीक, अब स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं दैट इज द बी पार्ट. व्हाट द बी पार्ट? दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन, एडिशन मींस यू नो दैट ऐड मींस एडिशन ऑफ द कंपाउंड. अगर आपका कंपाउंड एडिशन करता है मींस ऐड होता है, तो स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज नोन एज द एडिशन रिएक्शंस. अब आप एडिशन किसी से कराओगे? जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन साइनाइड से करा दिया. किसी भी कंपाउंड से अगर हम एडिशन कराते हैं, सपोज दैट हमने लिखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, फर्स्ट रिएक्शन इसका हम लिखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. स्टूडेंट्स साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड यू नो व्हाट? HCl. अब स्टूडेंट्स अगर किसी का भी आप रिएक्शन कराइए, चाहे एल्डिहाइड का, चाहे कीटोन का, किसी का अगर कराएंगे आप, हम कॉमन रिएक्शन पहले बता रहे हैं. स्टूडेंट्स आप ये जानते होंगे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? कार्बोनिल ग्रुप. अगर आप साइनाइड से रिएक्शन करा रहे हो, सपोज दैट ये आपका, ठीक,
अब स्टूडेंट्स अगर इसका आप एडिशन रिएक्शंस कराओगे, पीएच जो है ऑलवेज इसका लेस होना चाहिए 9 to 10 के नियर अबाउट, इस रिएक्शन का 9 to 10 पीएच। अब देखो होगा क्या, एडिशन होना है। एडिशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका ये रहेगा, ये जो डबल बॉन्ड था ये एक्सपेंड कर गया, ये O जो है इसके साथ चला गया, OH हो गया और CN नीचे वाले बॉन्ड्स लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो प्रोडक्ट देखिए हमने कहा कि जब उसमें दोनों बॉन्ड एक्सपेंड करेंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ, मींस आपका साइनाइड एक साथ चला गया CN और OH आपका एक नीचे आ गया। देखो ध्यान से, ये इसके साथ OH बना लिया और ये CN, तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। अब जो होगा, अगर आप एस्टल्डिहाइड्स लेंगे तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, कीटोन से करेंगे तो कीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। मींस जो भी आप रिएक्टेंट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, नेम हो जाएगा। जैसे मानिए हम एस्टल्डिहाइड की स्टूडेंट्स कराना चाहते हैं, एस्टल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, CH3, अभी आपने लिखा H CH3 C डबल बॉन्ड O, स्टूडेंट्स यही है CH3 CHO। अगर इसका रिएक्शन आप HCN से करा लो, ठीक है, pH 9 to कितना 10। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम वही, इसका एक बॉन्ड OH के साथ और एक साइन के साथ, तो क्या हो गया H CH3C, यहाँ हो गया क्या स्टूडेंट्स CN और यहाँ पर क्या हो गया OH। तो ये स्टूडेंट्स इसका नेम क्या था, एसिटोल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स, एसिटोल्डिहाइड। और अगर आयुपेसी करेंगे तो 2 कार्बन और 2 के लिए क्या होता है एथ, और CHO के लिए अल हो जाएगा, एथेनल हो गया। ठीक, अब इसका अगर नेम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स दिस इज द एसिटोल्डिहाइड, एसिटोल्डिहाइड, और हमने बताया इसको क्या कहते हैं जिसमें लगा हो साइनोहाइड्रिन, तो नेम क्या हो जाएगा एसिटोल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक, अब अगर यहाँ मानिए हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन लेंगे तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, मतलब एसीटोन अगर लेंगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, कोई भी कीटोन हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं CH3CO CH3 हो। आपके एग्जाम में कोई भी कीटोन अगर दिया होगा तो हमेशा कीटोन में से क्या होगा, जो O वाला होगा वो जो है H के साथ चला गया और जो CN है किसके साथ, दूसरे के साथ चला जाएगा। तो जो कंपाउंड यहाँ आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड होगा तो यहाँ प्रोपेनॉल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, यहाँ ब्यूटेनॉल्डिहाइड होगा तो ब्यूटेनॉल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, यहाँ एसीटोन है तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। जो भी आप लेंगे, अगर सपोज दैट हम यहाँ एसीटोन लें, सपोज दैट इसी रिएक्शन पर हम यहाँ CH3 लगा दें तो ये आपका एसीटोन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर एसीटोन का कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ओके, तो इस तरह इस रिएक्शन को कभी भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड रिएक्शन हम जो डिस्कस करेंगे, मतलब एडिशन का ही, एडिशन ऑफ सोडियम, एडिशन ऑफ सोडियम, 1 minute just students, the second of the nucleophilic, that is addition of sodium bisulfite, addition of sodium bisulfite, students sulfite NaHSO3, दिस इज द सोडियम बाइसल्फाइड। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम इसका सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं, सेम ऐसे एडिशन होगा जैसे यहाँ पर होता रहता था। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अगर कोई भी हम मान लीजिए एल्डिहाइड लेते हैं, सपोज दैट हमने HCH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा है एसिटोल्डिहाइड। क्या है स्टूडेंट्स, एसिटोल्डिहाइड। अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन कराते हैं, मींस क्या होगा NaHSO3 से, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए अभी हमने बताया कि इसमें से जो सोडियम होगा ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा इसके नीचे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स बना क्या, देखिए यहाँ हो गया H, यहाँ होगा CH3, ये आपका यहाँ पर क्या बना लेगा ONA, और ये आपका SO3H एक साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एसिटोल्डिहाइड है और इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड। तो नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इसका एसिटोल्डिहाइड। ठीक है, एसिटोल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटोल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटोल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड TE। ठीक, अब अगर आप यहां सपोज दैट एसिटोल्डिहाइड जहां पे एसीटोन ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O,
इसका हम करा देते हैं NaHSO3 से। तो सेम स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ आपका ये O जो है Na के साथ चला गया, और प्रोडक्ट दूसरा क्या हुआ, SO3H हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, एसीटोन। तो हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो आपका कोई भी दिया होगा तो आप इससे इसका रिएक्शन स्टूडेंट्स करा सकते हैं। अब हम रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, थर्ड जो इसका होगा दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। I'll have to look here and try to understand reaction with Grignard reagent. I'll have to look here and try to understand reaction with Grignard reagent. Grignard reagent. Listen, students, reaction with Grignard reagent. You know that Grignard reagent means RMGX. This is the common formula. अगर हम कोई पहले हम कॉमन रिएक्शन आपको लिख के दिखाएं, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नॉर्ड RMGX होता है स्टूडेंट्स। दिस इज द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए जैसे आपने कहा कि एडिशन रिएक्शन, तो ये भी आपका एडिशन रिएक्शन देगा। अब एडिशन कैसे देगा, इसमें से एक जो है और के साथ O चला जाएगा और एक बॉन्ड जो है MgX। देखिए दोनों आपके सेपरेट हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए इसमें से एल्काइल ये आपका C है, ये आपका बॉन्ड एक्सपेंड हुआ, ये आपका O जो है इसके साथ आ गया तो बन क्या गया OMgX, और ये आपका हो गया R, एल्काइल ग्रुप। हमेशा आप जानते होंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कभी भी रिएक्शन करता है तो फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स आप जानते होंगे रिएक्शन विद वाटर। अब स्टूडेंट्स अगर वाटर रिएक्ट करता है तो वाटर डिसोसिएट्स क्या होता है HNOH में, तो OH इसके साथ सेपरेट होकर के MgOHX बना देगा और ये इसके साथ लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स बना क्या, देखिए C, यहाँ R हुआ, यहाँ OH बन जाएगा प्लस आपका प्रोडक्ट क्या हुआ MgOHX बन गया, ठीक। वाटर अगर डिसोसिएट होगा H और OH बनाता तो H यहीं ऐड हो गया, तो यहाँ OH हो गया और ये MgOH। तो हमेशा स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा दैट जनरली इट इज नोन एज द ऑक्सीजन, ओके। तो दिस इज द प्रोडक्ट्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज द अल्कोहल स्टूडेंट्स, ओके। यू नो दैट हियर द कंपाउंड OH, सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, ओके। अब आप कोई भी ले लो, आप यहाँ पर मान लीजिए CH3 लेंगे, अगर यहाँ पर सपोज दैट ये तो कॉमन रिएक्शन है, अगर इस कॉमन रिएक्शन में आप मान लीजिए यहाँ पर आपको CH3 दिया हो और यहाँ पर भी CH3 दिया हो, और यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर आपको CH3 दिया हो और यहाँ पर मान लीजिए आपको ब्रोमीन दिया हो, ठीक। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, सेम प्रोसेस ऐसे होगा, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, CH3 लगा दोगे, यहाँ पर क्या लगा दोगे, CH3 लगा दोगे। R की जगह पर CH3 हो गया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या लगा दोगे, CH3 लगा दोगे। यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, Br लगा दोगे। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा CH3, यहाँ क्या होगा CH3, और यहाँ पर आपने ले लिया CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br। तो आपको जो भी प्रोडक्ट दिया होगा, अब इसका अगर नेम लिखा जाए तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, क्योंकि अगर देखिए चेन चलिए तो इधर से देखिए 1 2 3 कार्बन है और 2 नंबर पे आपका CH3 भी लग गया, 2 नंबर पे OH हो गया, तो हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेन टू ऑल। नेम अगर लिखेंगे तो देखिए ऐसे अगर चेन बनाएंगे, देखिए इधर चलिए, देखिए आपका ऐसे ऐड है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 के लिए क्या होता है प्रो, और ये 2 नंबर पे CH3 भी, 2 नंबर पे OH, तो इस एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये नेम हो गया, एल्कोहल बन गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि चाहे एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी का अगर हम कराते हैं तो एल्कोहल बनेगा। अब वो कंडीशन अलग है कि 1 डिग्री बन रहा है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो बन रहा आपका यहाँ पर क्या बन रहा है CH, देखिए ध्यान से COH बन रहा है, इसका मतलब क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स आप किसी का कराओगे, अगर एसीटोन का करा रहे हैं मान लीजिए, किसी का आप जिसका भी कराएंगे, आप एल्डिहाइड कराइएगा तो 1 डिग्री बनेगा। तो इस तरह किसी का भी अगर हम कराते हैं, चाहे आप एल्डिहाइड लीजिए चाहे कीटोन लीजिए, कोई भी ग्रिग्नॉर्ड एजेंट लीजिए, तो रिएक्शन आपका सेम होगा, इसी पैटर्न पर आपका रिएक्शन कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम एल्डिहाइड या कीटोन का अल्कोहल से एडिशन आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ जो रिएक्शन इसका हम स्टडी करेंगे मींस एडिशन रिएक्शन का, दैट इज I'll have to look here and try to understand. There are some problem with marker, so I'll have to pay attention.
स्टूडेंट्स द नेक्स्ट दैट इज द रिएक्शन एडिशन विद अल्कोहल, मींस इसका हम फोर्थ रिएक्शन, आपने इसका डिस्कशन एडिशन रिएक्शन तमाम सारा पढ़ा। अब हम फोर्थ इसका डिस्कशन करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब हम अल्कोहल्स का एडिशन कराएंगे जैसे आपने इसमें किया। अब हम कोई भी एल्डिहाइड्स और कीटोन अगर स्टूडेंट्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी, यहाँ पर हम कोई कॉमन रिएक्शन बता रहे हैं, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहाँ देखो HCHO आ गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या है, एल्डिहाइड है। देखिए अब R की जगह पे आप कोई लोगे तो एल्काइल ग्रुप लोगे, CH3 C2H5 कुछ लेंगे, तो ये आपका CHO एल्डिहाइड हो गया। अब इसका स्टूडेंट्स हम किसी भी अल्कोहल से अगर कराते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर किसी भी अल्कोहल को लीजिए, जैसे हमने ले लिया ROH, अल्कोहल मतलब ये है, R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ध्यान दीजिए ये हमेशा ड्राई HCl के प्रेजेंस में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन कराएंगे, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, अब स्टूडेंट्स देखिए होगा क्या स्टूडेंट्स, इसमें होना क्या कि सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होगा। अभी बताया गया एडिशन में क्या होगा कि इसमें से एक जो है एक बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा और एक बॉन्ड स्टूडेंट्स इसके साथ आ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर H है, यहाँ पर R है, यहाँ हो गया देखिए ऐसे बॉन्ड ये जो है एक्सपेंड कर जाएगा और ये आपका OR- हो गया और ये आपका क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रोडक्ट स्टूडेंट्स बनता है ये ऑलवेज एडिशनल प्रोडक्ट होता है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई साल आया है कि व्हाट इज द हेमी एसिटल, भी बता रहे हैं आपको, ये हेमी एसिटल है। अब स्टूडेंट्स हम क्या कराएंगे, इस हेमी एसिटल का फिर फर्दर जो है, अब आप इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पेस है नहीं, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, अगेन इसको आप रिएक्शन कराओगे अल्कोहल से, मींस R-OH से और वही ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, इसमें से सेम प्रोसेस जैसे था, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। क्या लिबरेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल, यानी प्लस क्या बन गया, वाटर। अब देखो वाटर बना कैसे, ध्यान समझिएगा। जब वाटर इसका लिबरेट हो गया तो अब अल्कोहल इसमें फिर ऐड होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर OR-, ध्यान समझिएगा, इसका ये वाला पोर्शन OH इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बना लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ बना क्या, हमने कहा कि ये OH जो आपका था, ये वाला OH, ये OH इससे रिएक्ट करके वाटर बना लिया। अब स्टूडेंट्स ये बॉन्ड पूरा खाली हो गया, यहीं पर ये आपका ऐड हो जाएगा, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया HR, यहाँ पर आपका हो गया OR-। अब यहाँ जो भी लेंगे आपका ये OR- यहाँ भी बचा, ये OR- हो गया। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना था वो एसिटल था, सेकंड ये हेमी एसिटल था, ये जो प्रोडक्ट कहलाएगा इसको हम कहेंगे एसिटल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसिटल। तो अब आपसे आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द एसिटल एंड हेमी एसिटल, तो आप लिखोगे कि व्हेन एल्डिहाइड्स आर कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, then the additional product is formed that is known as the hemi-acetal, and again it goes reacts to the HCl and by eliminated water molecule it produces the compound that is known as the acetal। यानी पहले जब किसी भी एल्डिहाइड का अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट्स जो कंपाउंड एडिशनल बना उसको कहेंगे हेमी एसिटल, और जब अगेन इसका अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज एसिटल। अब अगर सब, ये तो हमने कॉमन रिएक्शन लिखा, अब इसके प्लेस पे हम अगर मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड था, अब एल्डिहाइड में कोई तमाम सारे होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। अगर हम कोई एल्डिहाइड रिएक्शन कराते हैं, सपोज दैट यहाँ पर हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए एस्टल्डिहाइड सपोज दैट हमने ले लिया। अब एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम करा के देखें क्या होगा, जैसे एस्टल्डिहाइड मान लीजिए मेथाइल अल्कोहल से करा रहे हैं, तो एस्टल्डिहाइड हमने क्या बताया, यहाँ पर CH3 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए हम एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं, अभी बताया गया एथाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, C2H5OH, ये आपका हो गया C2H5OH। पहला रिएक्शन स्टूडेंट्स किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई HCl गैस में, ठीक। हमने बताया क्या होता है, ये बॉन्ड एक्सपेंड करता है, एक इसके साथ चला जाएगा एक इसके साथ, तो आपका क्या हुआ H, यहाँ पर क्या हुआ CH3, ये बॉन्ड आपका एक्सपेंड हुआ, यहाँ पर आपका हो गया देखिए O और ये C2H5, तो OC2H5 आपका हो गया
और यहाँ पर आपका OH लग जाएगा। ये इसके साथ हो गया OH। अब इसके फर्दर आप रिएक्शन कराते हैं। अभी हमने बताया कि इसका अगर फर्दर रिएक्शन जैसे आप इसमें कराए थे वैसे अगर इसका हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं सेम प्रोसेस में, किसके प्रेजेंस में स्टूडेंट्स, ड्राई HCl, 1 मिनट मार्क करता हूँ, ड्राई HCl में अगर हम फिर इसी का किसका कराते हैं जिससे आप कराए थे C2H5OH से, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगी। ये जो OH आपका है इस S से रिएक्ट करके क्या एलिमिनेट कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया। प्लस अब बचा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ H बचा, यहाँ CH3 बचा, यहाँ C, यहाँ पर क्या है OC2H5 था और यहाँ पर क्या बचा OC2H5 प्रोडक्ट बन गया। तो सेम है। अब देखिए फर्स्ट जो प्रोडक्ट ये आपका क्या कहलाएगा, हेमी एसिटल। ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम क्या कहेंगे, हेमी एसिटल, और जो ये प्रोडक्ट बना इसको क्या कहेंगे, एसिटल। तो स्टूडेंट्स अगर इसी तरह आप कोई भी इसका रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आप ये तो एल्डिहाइड की बात हुई, अगर आप कीटोन से कराओगे स्टूडेंट्स तो कीटोन जो है एसिटल का फॉर्म नहीं जनरली करता है। आप नोट्स करके लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड तो एसिटल और हेमीएसिटल फॉर्म कर रहा है, नीचे नोट्स करके लिखिएगा कीटोन्स डू नॉट फॉर्म एसिटल विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। Okay students, so we completed the two, that one the nucleophilic addition reaction followed by elimination of water, and the second nucleophilic addition reactions. These are the nucleophilic addition reactions, and three are left, that one the oxidation, reduction and miscellaneous reaction. This all be completed in the next video. So all of you see this video, subscribe the channel. If you subscribe the channel, then all the video which I uploaded, your notification will obtained, then you see properly. If you see all the videos properly, then all things properly understand, and it is most helpful in your board examinations. So students, bye bye. Again आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका ये साल और अगला साल भी मंगलमय होगा, आपका सुख समृद्धि पूर्वक ये साल बीतेगा। इस शुभकामना के साथ अगेन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय स्टूडेंट्स।